Hello and a warm welcome to our special edition of the interviews on the election campaign trail. We are in Mathura with the Lok Sabha MP and the dream girl of yesteryears, Hema Malini. I welcome you on the show. Thank you so much. My first question to you is that since you're so busy at this point of time, what really is driving you to the fields amongst the people? I'm campaigning for, because I'm standing for this election from Mathura, this constituency. So I'm just going around to meet people from morning till night almost. Last time when you contested, there was a very strong Modi wave and the victory was a foregone conclusion. But this year, do you feel that the fight is a little different, the contest is a little different than what it was in 2014? Yes, definitely it is different, but Modi wave is still there. I won't say it is not anymore. It is always there and it will be there. At this time it is the development what he has done for the country, the way he has brought the country into such a beautiful manner in foreground. That is the main thing. That is the mudda you can say for us to talk about. And we are very proud about all the yojanas he has made, which is all being implemented among the people, and people are happy, they are receiving it. And that's what makes you feel confident that BJP will win in Mathura? Yes, and Mathura will win because I have done my work also. It's not that only Modi ji has done in the country and I am just sitting, did nothing and I am going to win. It's not that. I have done so much work and which I am very proud of. That I have done so much work which the previous, none of the MPs were able to do. Such things, because with a lot of passion I have been doing in this place. This place I wanted to do, so I am trying to develop the best, whatever I can. So do you feel happy at the end of 5 years with whatever work you have put in Mathura? You feel that you've been able to give your 100%? Yeah, 100% I gave, but a lot of things were unable to get it done because in the beginning the other UP was not with us. Now UP is with us, so from both the Rajya Sarkar and Kendra Sarkar I am able to get facilities. So it is more easier for me to develop more things. See, this is first of all, it's a Krishna ki Nagari hai. This is a religious tourism center. So lakhs, crores of people keep coming here from all over the world. They come to see Krishna's place. The Krishna is such a charming God. So everyone gets very fascinated by listening to his stories, and this is the place all his pastime have been spent, Lord Krishna. So this is very, very important place which is alive. This is still there, So I only tell the people that development जो भी करते हैं कि आप बहुत खूबसूरत इसको अच्छा डेवलप कीजिए, बट उसका जो प्राचीन काल का उसका जो लुक है उसको मिटना नहीं चाहिए. जहाँ जहाँ कृष्ण स्थली है उन सबको we have to maintain it. What happens, there are so many people, places is already almost lost. Nobody knows यहाँ पे कृष्ण ने ये किया अभी देखेंगे तो ऐसा लगता है कि so this was our government's job to have maintained all this important place, वो वहाँ पे कुछ अभी now we are trying to do the best to keep preserve all those places. लेकिन मथुरा और वृंदावन को जो एक हेरिटेज स्टेटस देने की बात कही थी, वो कितना सीरियसली आप परस्यू कर रही हैं? हेरिटेज स्टेटस तो है इसकी, एंड देन इसको तीर्थ स्थल भी घोषित किया है. गोवर्धन, बरसाना एंड मेनी प्लेसेस हैव बीन डिक्लेयर्ड, वृंदावन. So a lot of things we are doing. Our government is doing many things. जो कास्ट कैलकुलस की इस इलेक्शंस में बात करें, लास्ट टाइम इट वाज अ फॉरगॉन कंक्लूजन एज आई सेड कि हेमा जी विल विन फ्रॉम मथुरा, पर इस बार समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी तीनों एक साथ आ गए हैं. और जो आरएलडी का कैंडिडेट है कुंवर नरेंद्र सिंह, वो ये कहता है कि ब्रिजवासी वर्सेस आउटसाइडर का डिबेट है. तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगी इस पूरे मामले पर? मैं पूछना चाहती हूँ कि ब्रिजवासी होकर उन्होंने क्या किया आज तक, ब्रिज के लिए क्या किया? जो मैंने 4 साल में मैं कर दिखा रही हूँ और इतना इन्वॉल्व हूँ लोगों के साथ, उनके दुख सुख में आई एम गेटिंग इन्वॉल्व विद द पीपल. व्हाट दे हैव डन? नथिंग दे हैव डन. सो ओनली बोलने से हो गया क्या? No, it is the work which will answer, and then you have to have lot of feeling in your heart for the place.
जो ये opposition And they can't keep saying that I am outsider. I am here. This is where you are sitting and interviewing right now. It's my house. I have built a house here. पर हेमा जी, जो ऑपोजिशन का जो कैंप है वो बहुत सारे तरीके के भ्रम फैला रहा है। जैसे वो ये कहते हैं कि हेमा जी तो यहाँ कभी आती ही नहीं थी, हेमा जी अभी भी मुंबई में व्यस्त रहती हैं अपनी बॉलीवुड के कामों में। तो ये सब जो चीज़ें, ये जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है, इसको काउंटर आप जब लोगों के बीच में जाती हैं वो कैसे करेंगे? लोगों को मालूम है ना, मैं तो यहाँ 250 टाइम्स के ऊपर मैं आई गई हूँ इधर मथुरा में in 4 years time. So many times I come. It's very far. And Mumbai to मैं जाऊँगी. That's my house is there. My whole परिवार, my family is there. So I have to spend time there. And then whenever I am required, I am always here. And there are many work which I need not be here to do that. मैं वहाँ बैठ के भी मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ. तो जो काम में लगाव होना चाहिए, काम इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, इस पर ध्यान देना चाहिए. That's what I am doing. And I am very glad that I have certain people with me working, my Pratinidhi and all here. They are really taking care and then they implement everything. So many letters are being made and sent to the central government for approval, and then approve वहाँ होता है तो यहाँ पे फटाफट हो जाता है सारा काम. अभी now that express जो highway यहाँ पे जो है national highway, the work was going on so slow. The highway was built so slow. The flyovers are made so terrible, I mean delayed, so much delay. So I had to interfere and say no, ऐसा नहीं, मथुरा लोगों को बहुत दिक्कत होती है, आप जल्दी से इसको ठीक करा. So the work started moving very fast, and so many people for their convenience they want underpass चाहिए, क्योंकि लोगों को क्रॉस करने में बहुत प्रॉब्लम होता है. So I keep getting involved in all public requirements. I'm doing it, and then it is very congested in many places. सालों से ऐसा है यहाँ पे, तो उन सबको जरा रेक्टिफाई करना लोगों के. आई कीप मीटिंग ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन पीपल एंड देन डिस्कस विद देम. सो मेनी रोड्स यू विल सी टुडे इन मथुरा, इट्स सो नीट एंड क्लीन एंड वाइडन्ड. दिस छटिकरा रोड विच वाज सो टेरेबल, आई सेड वृंदावन जाने ये ऐसा रास्ता, नाउ इट इज सो नाइस. वो नाला पड़ा हुआ था, उसमें से पानी से बाहर था, अरे उसको कोई पूछने वाला नहीं है. बट यू नो यू हैव टू हैव एन आई फॉर दैट. You have to keep telling no, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ठीक करो. Then immediately you have to talk to the concerned people and then get it done. Then I speak to my DM immediately. I say यहाँ सब ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, आप ठीक करवाओ. हेमा जी, इस इलेक्शंस में काफ़ी सारे मुद्दे हैं. एक मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का है, एग्रेरियन डिस्ट्रेस का मुद्दा है, एज़ैट मिसाइल जो अभी लॉन्च हुआ था उसको भी बहुत सारे लोग पॉलिटिकली देख रहे हैं. And then you had the Pulwama attack and the way, you know, the Prime Minister Modi went ahead and took that dynamic call of attacking Balakot and doing an airstrike. Which according to you is the most potent issue of this election of 2019? Moment is the Pulwama attack. Definitely what Modi ji took a step to give them reply back. None of them had done all these years. None of the Prime Minister had the guts to do that. When our Mumbai was attacked, so many innocent people died in that Atankvad ka attack, terrorist attack. So that time what happened? Nothing happened. Everybody kept quiet. What do you mean? You have to say what. So when Modi ji took a decision and then the dynamic attack, what he did, so now people criticize. Why? What is the problem? Pakistan should feel hurt, not our own people. Opposition our is asking for proof. People are feeling hurt. अरे उसको क्यों ये क्या, अरे आपका क्या रिश्तेदार है क्या? Opposition is asking for proof. What is the proof that you conducted a strike? Very, very silly, and this is not the time to find fault, because the whole country should unite together and face the terrorist. एक सवाल हेमा जी आपकी लाइन से ही जुड़ा हुआ है कि कम स्टार्स आते हैं, जो फिल्म स्टार्स होते हैं वो राजनीति में जब कदम उठाते हैं, जब अपना प्लंज लेते हैं, सो मैनी टाइम्स दे डोंट परस्यू देयर जॉब सीरियसली. Unlike you've been here, you've camped yourself, you worked for a constituency like Mathura, which was not your own, and you adopted that constituency. But why is there a perception that the film stars are not serious about politics? Is That this about perception others, correct? I don't know. Maybe I'm very different from others. I've been dedicated to my dance, my film, which I continue to do that. If I'm able to do everything at one time, so what is the problem? The God has given me the Shakti. So you are a women or a Shakti Roop. So I'm able to do it. So one should appreciate instead of asking questions how you do it. But you do admit that this election of 2019 is posing a fight for you because the three parties have come together?
Yeah, with the due respect and all, I mean, I will not underestimate anybody. I had to work hard for my position, which I am doing it day and night now, right now, and result will be seen, because result will be seen according to what the work I have done, and the people have got so much love for me. As a Brajvasi, I have showered so much love, and I have done so much work, so much सेवा. ऐसे मैं तो ब्रज में आई हूँ एक गोपी बनकर आपके बीच में, आपकी समस्याओं को हल करने के लिए, आपके साथ, आपके लिए विकास करने के लिए आई हूँ. So let me do it. So they are very happy. There are a lot of things not yet done, which people will definitely say अभी तक हुआ नहीं, अभी तक. अभी हो जाएगा भैया. 4 साल में 60 साल का जो काम नहीं हुआ आज तक, वो अभी थोड़ा थोड़ा सा शुरू हुआ है, तो ये समस्या भी हल हो जाएगी. मथुरा ज़्यादातर एक जाट लैंड माना गया है. इसके पहले जो कैंडिडेट थे अजीत चौधरी के बेटे जयंत चौधरी, वो पिछले बार हार गए थे. बट प्रिडोमिनेटली दिस इज़ अ जाट लैंड. व्हाई वुड द जाट्स वोट फॉर बीजेपी दिस टाइम? गिव मी वन रीज़न. One reason is we have done very good work. Modi ji has proved that as the best leader, and then he has brought our nation into in a very high level. The whole world is respecting us. So all those things makes a difference. And then the Pulwama attack का जो जवाब दिया, उससे भी हमारे जाट भाई लोग बहुत खुश हैं. They are very happy. And by the way, I am also a जाट. तो हेमा जी, जब आप गेहूं के खेतों में जाती हैं, औरतों के साथ कटाई करती हैं, ट्रैक्टर पे भी हमने आपको देखा, तो क्या ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है? ऑपोजिशन कहता है कि ये सब नौटंकी है. देखिए, इतने 4 सालों में, यू थिंक आई नेवर वेंट इनसाइड द खेती. उस वक्त तो कोई मीडिया नहीं था, फोटोग्राफ लेने वाला नहीं था. आई यूज्ड टू गो सो मेनी मीटिंग्स आई हैव डन इन सो मेनी विलेजेस, सो मेनी विलेज वीमेन आई मीट, आई टॉक टू देम. ट्रैक्टर के ऊपर के अभी पहली बार चढ़े, बहुत बार चढ़े. लेकिन अभी क्या, मेरे साथ साथ लेके आप लोग आते हैं, तो चैनल पीपल कम एंड देन दे वांट सम एंटरटेनमेंट, सम फोटोग्राफ दे वांट. सो एज ए फिल्म स्टार, व्हेन आई गो एंड स्टैंड एंड टेक ए पिक्चर, इट बिकम्स अ बिग न्यूज़. सो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट. They want the picture, Exactly. not me. मुझे ज़रूरत नहीं है. अगर विकास इतना बड़ा मुद्दा है, तो कास्ट कितना बड़ा फैक्टर है मथुरा की कंस्टिट्यूएंसी में आपके लिए? मेरे लिए सभी ब्रजवासी हैं, ब्रज के हैं, और मैं ब्रज में आई हूँ. मैं कोई कास्ट विस्ट नहीं देखती हूँ. मेरे लिए सब एक जैसे हैं, और सबके लिए सेवा करने के लिए आई हूँ. कन्हैया की सेवा करने के लिए आई हूँ. So I'll be here as long as the Lord wants me. थैंक यू हेमा जी. Thank you so much. मथुरा के वाकलपुर गांव में हूं, और आइए यहां के लोगों से समझते हैं. लेकिन इसके पहले कि मैं लोगों के पास जाऊं, हमारे साथ यहां के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं चंद्रमोहन सिकरवार जी. उनके पास आएंगे और सबसे पहले आपसे जानेंगे सिकरवार जी कि जो मथुरा के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हैं जिन पर इस बार का चुनाव लड़ा जा रहा है, वो क्या मुद्दे हैं? देखिए, यहाँ से वर्तमान सांसद हेमा मालिनी जी बीजेपी से हैं, और गठबंधन से जो लोकदल कोटे से कुमार नरेंद्र सिंह हैं. तो जो स्थानीय मुद्दे हैं वो इस बार ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़े बहुत स्थानीय बनाम बाहरी प्रत्याशी, एक तो ये मुद्दा है. दूसरे जो है, हेमा मालिनी जी द्वारा जो कार्य कराए गए हैं उनके बारे में गठबंधन ये प्रचारित कर रहा है कि इन्होंने कोई कार्य नहीं कराया, जबकि वो बता रही हैं कि उन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं. तो जैसी उम्मीद थी कि एक बहुत बड़ी डिग्निटी हैं, बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं, उनकी सरकार में पकड़ है, और राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट जो है बड़ी दबंग है, तो जितना काम कराना चाहिए उतना काम नहीं कराया, ये तो गठबंधन वाले बोल रहे हैं. और भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है हेमा मालिनी जी, मेनली जो चुनाव लड़ रही हैं वो मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिना रही हैं, थोड़ी बहुत अपनी उपलब्धियां भी गिना रही हैं. तो मुद्दा तो केवल स्थानीय बनाम बाहरी है, और इससे ज़्यादा छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनके बारे में बता देती हैं. तो यही चीज़ें हैं फ़िलहाल तो. अच्छा,
और कास्ट का जो फैक्टर है, ये जो जात का जो फैक्टर है, ये कितना सिग्निफिकेंट है इस इलेक्शंस में, क्योंकि ये प्रिडोमिनेंटली ये जाट बहुमूल्य एरिया है जहाँ पे कि जाटों की बहुत बड़ी पकड़ है, फिर ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन जो प्रिडोमिनेंटली जिसे जाट एरिया कहा जाता है तो वो उसका उस पर कितना प्रभाव है? देखिए, यहाँ जो मथुरा लोकसभा से ज़्यादातर जो प्रत्याशी जीते हैं अभी तक वो ठाकुर और जाट ही जीते हैं। तो पिछली बार 2014 में सांसद बनी ये हेमा मालिनी, इनसे पहले जैन चौधरी थे लोकदल से, तो वो जाट कैंडिडेट थे। तो यहाँ सर्वाधिक जाट हैं, वो अपने को लगभग 4 लाख के करीब बताते हैं, तो इसलिए वो जाट फैक्टर काम करता है यहाँ पर। लेकिन जो इस बार का जो कॉन्टेस्ट है, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, आरएलडी एंड बसपा, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, क्या ये बीजेपी को एक टफ फाइट दे रहा है इस समय? हाँ, बिल्कुल टफ फाइट दे रहा है। पहली जैसी स्थिति हेमा मालिनी की नहीं है। यानी भाजपा कैंडिडेट पहले जिस तरीके से मोदी लहर में और अपने ग्लैमर के सहारे बहुत अच्छे मतों से जीती थी, वैसा इस बार नहीं लग रहा। चलिए, तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिवाकर जी, जो कि यहाँ के क्षत्रिय समाज के एक मेंबर हैं, उनसे जानते हैं। तो आपने सिकरवार जी को सुना, उनका ये कहना है कि बीजेपी को इस बार कड़ी टक्कर मिल रही है गठबंधन से, कितना सच है? बीजेपी की टक्कर में कोई नहीं है, जो गठबंधन है टक्कर नहीं है या आप मान नहीं रहे हो? मान नहीं रहे, टक्कर में है ही नहीं, क्योंकि बसपा जो है शून्य पर आ गई थी पिछले लोकसभा चुनाव में, सपा शून्य पर आ गई थी और आरएलडी शून्य पे आ गई थी। आपके हिसाब से कोई टक्कर नहीं है? कोई टक्कर नहीं। अच्छा, जो बीएसपी और समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है, उसके जुड़े भी नेता हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं। आप बताइए, आप पूरे गठबंधन के जो समर्थक हैं, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि आप इनको चुनौती नहीं दे पा रहे हो बीजेपी को? नई चुनौती है, बीजेपी बहुत नीचे इस टाइम, गठबंधन का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, इसमें जाति प्रभाव भी पड़ रहा है। गठबंधन जीतेगा कि इसमें बसपा, लोकदल और सपा तीनों मिक्स हैं और तीनों का वोट अच्छा है। आपका नेता कौन है? अगर बीजेपी का नेता मोदी जी हैं, तो आपके गठबंधन का नेता कौन है? मेरा सवाल ये है आपसे। मतलब अकेली पार्टी, इसमें 3 पार्टी, 4 पार्टी, तो अलग अलग नेता है और आगे चुनाव जीतेगा कौन प्रधानमंत्री का जी आगे की। तो आपको नहीं लग रहा कि आप पब्लिक को कंफ्यूज करोगे? एक आम वोटर है, वो सोचेगा कि किसकी कौन सा चुनाव चिन्ह हम ले, किस पे वोट डालें, ये बात सही है कि नहीं? नहीं, चुनाव तो अब तीनों का एक ही है ना, चुनाव चिन्ह तो यहाँ पे नल पे वोट डालेंगे तीनों पार्टियों के। अच्छा, चलिए, अब फेरे पड़ जाए, दूल्हा हम बाद में चुन लेंगे। चलिए, वो फेरे और दूल्हे की बात बाद में करेंगे, और कौन सा चुनाव चिन्ह पे लोग वोट डालेंगे ये तो अभी जब 18 को यहाँ पर वोटिंग होगी तो पता चलेगा। मेरे साथ यहाँ पे गांव के बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, कुछ महिलाएं आप देख सकते हैं जो गांव की जुड़ रही हैं हमारे साथ। इन महिलाओं से जान लेते हैं कि क्या रुख है इस समय। कितना इंटरेस्टिंग आपको ये चुनाव लग रहा है आपके हिसाब से? आपको क्या मूलभूत सुविधाएं मिली गाँव में, क्या है? खूब तो मच्छर खा रहे हैं यहाँ। आपको मच्छर खा रहे हैं? अच्छा, तो आपके हिसाब से चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा मच्छर है? पहले कहा कि लेडीज जिनके काम पूरे हो जाएंगे जब तो बुदंगे सुनते ही नहीं है। अच्छा, सुनते नहीं है। अच्छा, ये अम्मा जी हमारे साथ जुड़ रही है। आप बताइए अम्मा जी, क्या दिक्कतें हैं गांव में, बताइए। यही दिक्कत है, पहले तो अभी इतनी सुविधा हो गई, पहले सड़क नहीं है, अब सड़क है। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, बताइए क्या कह रही है? हाँ, कि पानी की, बिजली की सुविधा सही चल। पानी और बिजली की सुविधा है आपको, उसमें कोई शिकायत नहीं है। तो शिकायत किस बात की है? मच्छर की वैसे सड़क पानी। अच्छा, तो सड़क में आप कहते हो कि गांव की जो अंदर की सड़कें हैं उसमें पानी भर रहा है, और आवारा गैया इतनी डोल रही है, बर्बाद कर रही है खेतन में। अच्छा, आपको गाँव में गैस सिलेंडर मिला, घर मिला ना मिले, न घर मिले, न सड़क। अच्छा, आप कह रहे हो कि बहुत सारे लोगों को मिला है, लेकिन आपका अभी तक नंबर नहीं आया। तो चलिए, वो नंबर आ जाएगा। अम्मा जी, आप बताइए, आपको क्या दिक्कत है इस गांव में, क्या दिक्कत है? हेमा मालिनी जी जो आपकी प्रत्याशी हैं, यहाँ पर जो लोकसभा की एमपी हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हो? आपसे वो कभी मिलने आई? आपने उनसे बात किया? कभी अपनी समस्याएं आपने उनको बताया? बात तो ना करी, पर बहन हमारे ये तो पेंशन ना बन रही। अच्छा, हाँ, ये हमारा घर ना बंद। अच्छा, तो आपको शिकायत है कि आपको पेंशन नहीं मिल रही है, आपका घर नहीं बन रहा है। अच्छा, चलिए, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगी मैडम? हाँ, क्या दिक्कत है आपके हिसाब से? किसकी समस्या है? गैया की समस्या है। खेत खा चली, और जो कछु मिले वो सरकार ने दिया, हमको तो कछु मिले ही ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जब अभी आप 18 तारीख को जब आप वोट डालोगे, आप लोग भी हो यहाँ पे, वरिष्ठ लोग हो गांव के, 18 तारीख को जब आप वोट डालोगे, यहाँ पे आपके हिसाब से मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है या जात पात में लोग ज्यादा विश्वास करते हैं? हमारे यहाँ मुद्दा है राष्ट्रवाद का।
राष्ट्रवाद आपके लिए मुद्दा है? राष्ट्रवाद मुद्दा है, जो हमारे राष्ट्र की अच्छी तरह से सेवा करेगा, राष्ट्र की रक्षा कर सकेगा, उसको हम वोट डालेंगे। अच्छा, आपके हिसाब से इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? विकास का। जैसे कि आपके गांव में विकास हुआ है? हाँ हुआ है विकास, लाइट सही है गई है, रोड बन गए, कच्चे रोड बकाया रह गए, पानी की समस्या है वो खुद हल है गई है, बाकी छोटी मोटी समस्या चलती रहते हैं। जब विकास करेगा भाई वोट मिलेंगे। आप कह रहे हो कि विकास एक मुद्दा है, तो जो गठबंधन है, गठबंधन ने अभी कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है विकास का। गठबंधन का गठबंधन कर सकेगा क्यों? 60,000 नेता है, कौन क्या करेगा? आप कह रहे हो कि 60,000 नेता है, वो कौन क्या करेगा वो पता नहीं। अच्छा, आप बताइए, आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ये सड़क नहीं बन रही है हमारे यहाँ पर, पानी भर जाता है वहाँ पर। अच्छा, सड़क का मुद्दा है आपके हिसाब से। तो आपने क्या शिकायत करी हेमा मालिनी जी से? हमारे तो कई बार कोई सुना ही नहीं कोई। अच्छा, हेमा मालिनी जी के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो तो बॉलीवुड एक स्टार है, आती नहीं है, लोगों से मिलती नहीं है, ये कितना सीरियस इशू है, बताइए सर। सही है, बात तो मिलता और रेगुलर सके बनते। अच्छा, हाँ, लेकिन नहीं मिल सकता है। लेकिन वो तो कहती है वो सबसे मिलती है जाकर। ना ना ना, वो रोड शो किया है उन्होंने, मेरे यहाँ कोई सवाल नहीं की किसी से, कोई दुख दर्द। अच्छा, रोड शो किया है, आप क्या कह रहे हो? हाँ, गाड़ी में तो नहीं उतनी बात नहीं है, चश्मा लगा के खाली बैठी रही गाड़ी में। अच्छा, आप कहते हो कि वो चश्मा लगाकर गाड़ी से नहीं उतरती हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं गांव के, उनसे भी पूछते हैं, आप लोगों की क्या राय है हेमा मालिनी जी के बारे में? मैम, वो एक तो गाड़ी से नहीं उतरी, ना किसी की बात सुनी, अम्मा ने उनसे कहने की कोशिश भी करी, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना। अच्छा, और कुछ बच्चे बात करेंगे। आप वोट नहीं कर पाओगे लेकिन आपकी राय जरूर मानी जाएगी, बताइए। गाड़ी में तो राम राम श्याम श्याम करते नहीं सुनाएंगे तो। राशन भी लेने जाते हैं तो पहले मिलता ही नहीं है, शाम 2 दिन हो जाते हैं परंतु मिलता ही नहीं है। और पहली बात, सड़क का आधा हिस्सा इस गांव में कर दिया और आधा गणेश राम कर दिया, जिसके कारण जो लोग भी आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, वैसे गाँव के शहर से आते हैं, वो भी परेशान होते हैं। अच्छा, सीकरवार जी, जो नेशनल, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे कि पुलवामा में अभी अटैक हुआ, उसके बाद बालाकोट पर स्ट्राइक करी, और एक ये छवि गई कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कि कुछ कर दिखाने में सक्षम है, कुछ कर दिखा कर सकता है। उसके बाद हमने एक देखा एसैट लॉन्च, मिसाइल लॉन्च किया गया, ये दिखाने के लिए कि भाई इंडिया से, भारत से कोई मैस अराउंड नहीं कर सकता, एक वो मैसेज गई। ये जो मुद्दे हैं, ये यहाँ पे कितने प्रभावी हैं इस चुनाव में? ये देखिए, जो जागरूक जो वोटर है, चाहे वो रूरल में है चाहे सिटी में है, वो ये बात मानता है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं, तो वो तो इससे जो है प्रभावित है। तो आपको लगता है कि जो ये चुनाव है, ये इन मुद्दों के ऊपर स्विंग किया जा सकता है? लेकिन ये मेरा कहने का मतलब ये है ना कि ये जो आपने गिनाई बातें हैं, ये एक वोटर का एक छोटा सा वर्ग इससे प्रभावित है, पूरा वोटर नहीं। अब जैसे गांव देहात में बिल्कुल जो सामान्य वोटर है, जो अपने खेत और घर के बीच में रहता है, उसे क्या जानकारी या क्या मतलब है कि राष्ट्रवाद या जो आपने इसरो से जो प्रक्षेपात किया है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने ठीक कहा, लेकिन क्योंकि ये प्रेडोमिनेंटली एक गांव का इलाका है, बहुत सारे यहाँ पर किसान भी हैं, तो जो खेती और किसानी से जुड़े मुद्दे हैं वो कितने प्रभावी हैं? यहाँ पे जो बैठे गांव के लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आप लोग सब खेती किसानी से जुड़े हुए हो, किसी न कोई ना कोई परिवार हमेशा जुड़ा ही हुआ है, तो खेती और किसानी के मुद्दों को किस तरह से मौजूदा सरकार ने हल करने की कोशिश की है, आप बताएंगे? ऐसा है कि मोदी जी से कोई बैर नहीं है किसी का, प्रत्याशी से 24 घंटे बैर है। मोदी जी से बैर नहीं है लेकिन प्रत्याशी से बैर है, आप कह रहे हो? हाँ, कुल मिला के ये है कि प्रत्याशी किसी समाज को नहीं समझता है कि कहाँ है समाज, कहाँ प्रत्याशी है। अब हेमा मालिनी जी आई हैं, सीधी निकलती हुई चली गई, किसी से बोलने की भी ज़रूरत नहीं, क्यों? जब वोट लेने में भी नहीं बोल सकता आदमी, तो क्या विकास कराएगा? क्या ये आप मानते हो, क्या ये बात सही है जो ये कह रहे हैं? नहीं, बात सही है, मोदी जी अपनी जगह सही है, मोदी ने विकास भी कराए हैं, और किसानों के लिए जो है 2,000 रुपये भेज रहे हैं, मतलब गरीबों के लिए सिलेंडर दिए, बिजली कनेक्शन मुफ्त दिए, सुनो बिजली कनेक्शन मुफ्त दिए गरीबों के लिए, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। पर जो नीचे वाले लोग हैं जो उसमें जो रेफरी कर जाते हैं। देखिए, ये तो सही बात है कि मोदी जी हर गांव में जा के एक दरवाजे पर तो नहीं बोल सकते, वो अपना काम अपने प्रत्याशियों से ही करवाएंगे, जो कि उन्होंने पूरी कोशिश की है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय नेता है आपका, वो काम नहीं कर रहा है, वो ये मैसेज कहाँ तक सही है? देखो, ऐसा है, जो नेता हो जाता है फिर जो है, जो जनता की तरफ ज़्यादा नहीं सोचता है, वो अपनी तरफ ज़्यादा सोचता है। ये जो प्रजातंत्र शासन है हमारा, इसमें पहले लोग बाग जाकर के अपने स्वार्थों की सिद्धि करता है, जनता की तरफ तो पीछे जाकर के ध्यान देता है। जबकि हमारे जो ऊपर की जो सरकार, केंद्रीय सरकार है,
वो जनता के हित के लिए काम करती है। और यहाँ आते आते कुछ ऐसे ये हो जाते हैं जो पद पा करके कि अपने अहंकार में डूब जाते हैं और जनता की तरफ ध्यान नहीं देते। ये जो मुद्दा है इस पूरे चुनाव में, ये जो मुद्दा है जो पूरे चुनाव में कि ब्रिजवासी बनाम आउटसाइडर, जो हेमा मालिनी जी को बाहर ही देखा जा रहा है, और एक जो ब्रिजवासी वर्सेस आउटसाइडर पे जो ये पूरा चुनाव है, क्या आपको लगता है कि जनता इस मुद्दे पर ही वोट डालेगी इस, और बाकी कोई चीज़ें लोग संज्ञान में नहीं लेंगे? नहीं, ये कोई बात नहीं है कि उस पर ही वोट डालें। बोलो वोट तो आदमी देख के और अपना हिसाब किताब देख के डालेगा। आप क्या चीज़ देख के वोट डालेंगे? अब जी देखेंगे कि तो भाई कौन बढ़िया काम कर सके जितना है काजी, कौन क्या कर सकता है। दिवाकर जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो ये हेमा मालिनी की तरफ से इतनी सारी शिकायतें आ रही हैं कि वो लोगों से मिलती नहीं है, गाड़ी से नहीं उतरती, बात नहीं करती, तो कैसे वोट डलेगा हेमा मालिनी जी को, ये तो बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछले चुनाव में लोगों को मालूम था कि ये फिल्म स्टार है, इंटरनेशनल फिगर है, और वो मथुरा से चुनाव लड़ने आई। उससे पहले भी उन्होंने किसी से बात नहीं की थी। लोगों ने उनका फोटो अखबार में, टेलीविज़न में, पिक्चर हॉल में जाके देखा था, और वो यहाँ एक बहुत अच्छे वोटों से जीती थी। उनकी वही स्टाइल आज भी मौजूद है। स्टाइल तो कोई शिकायत नहीं है कि वो मिलती है फिल्म। आप शिकायत की बात कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए लोग शिकायत कर रहे हैं। वो अपने काम को बखूबी कर रही हैं, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को करना चाहिए। लोकसभा में अपने मथुरा की जो विकास योजना, जैसे रेलवे स्टेशन का विकास है, विद्युतीकरण है, उज्ज्वला योजना है, जो भी सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती हैं, उसके लिए उन्होंने सरकार से बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। लोकसभा में भी प्रश्न उठाए हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का यही कार्य होता है। पब्लिक को उन नेताओं की एक आदत पड़ी हुई है जो काम कम करते हैं, लोकसभा में आवाज़ कम उठाते हैं। लोगों के जो व्यक्तिगत कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, शादी विवाह, उनमें वो घूमते रहते हैं। वो सोचते हैं यही हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। इस आदत को हमको बदलना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि भाजपा इसलिए कॉन्फिडेंट है क्योंकि मोदी जी ने जो हज़ारों स्कीम्स लोगों के लिए लेके आए हैं, उनके दम पे बीजेपी को वोट पड़ेगा। अब लेकिन मेरा एक सवाल, इसके पहले कि मैं शो वाइंड अप करूँ, गठबंधन, आप बोलिए, आप गठबंधन के सपोर्टर हैं, आप ये बताइए कि मोदी जी ने तो बहुत सारी स्कीम्स लेके आए, लेकिन गठबंधन के सामने क्या चीज़ आप लोगों के बीच में लेके जाएंगे? आप कह रहे हैं मोदी जी की स्कीम्स थी और उन्होंने ये इतना सारा विकास किया, गठबंधन क्या बोलेगा लोगों को? इन्होंने जो दिखावा जितना कर रहे थे ना, हकीकत में यहाँ कुछ नहीं किया है। जैसे गोवर्धन में घोषणा करके, वृंदावन में पार्किंग करके 1 रुपये का काम नहीं किया है। जमुना जी का रिवर फंड का काम चल रहा था वृंदावन में, वो काम बंद है। जमुना जी में पानी गंदा आ रहा है, कोई गोवर्धन फूल लेना होना था, आज तक कोई काम नहीं हुआ है। विकास की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो एक दिन में तो ये सबको पता है कि विकास नहीं आता है, उसमें टाइम लगता है। और क्या आप इस बात को नहीं मानते? ये तो दुनिया देख रही है कि जो मथुरा की छवि है वो दुनिया की नज़रों में बदली है। आज कुछ ना कुछ तो विकास पहुंचा है। नहीं, वो सही है, लेकिन किसान कितना परेशान है। यहाँ पैदावार बहुत कम हो रही है और उसमें भी गाय खा जाती है। तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ये बेरोजगारी है, गाय का मुद्दा है, किसान परेशान है यहाँ पे, और कोई विकास भी नहीं हुआ है यहाँ पे। मैम, हमारे यहाँ मरघट है, उसमें आदमी कोई मर जाते हैं, फूंक नहीं सकते, उसको हम जमुना जी ले जाना पड़ता है। जब मरघट में अवैध कब्जा कर रखा है लोगों ने, पानी भरा हुआ है, ये स्थिति, मतलब क्या विकास है? आप जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जातिवाद नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जातिवाद की कोई बात नहीं, केवल विकास की बात है। विकास में दिखावा ज्यादा कर। आपके पास तो विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो अभी तो हमारी सरकार ही नहीं, हम क्या करें इसमें? कि आप विकास के नाम पर क्या बोल रहे हैं लोगों को? पहले अखिलेश जी ने घोषणा की, मतलब गोवर्धन फूल लेन करने की, ये काम रोक दिया उन्होंने। अखिलेश जी ने घोषणा की थी, वो सारी घोषणाएं फेल हो गई। जमुना जी रिवर फंड का काम चल रहा था, वो इन्होंने बंद करा दिया। अपना नया काम कोई कराया नहीं, पुरानी सरकार का काम बंद करा दिया। विकास हो तो हो कहाँ से? आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम्स है गाँव में, और क्या जो मौजूदा सरकार है वो खरी उतरी है आपकी उम्मीदों पर? देखिए, उम्मीदों पर खरी सरकार उतरी है, परंतु एक्चुअली क्या है कि जब गांव के एक विकास की बात की जाए, तो एक राष्ट्रवाद के विकास की बात की जाए तो वो अलग है। गांव का विकास में जैसे कि आप हमारे गांव से अगर अंदर आओ तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जहां घोंटू घोंटू पानी भरा रहता है, उन्हें जाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, सारी ड्रेसें खराब हो जाती है, जूते खराब हो जाते हैं, लेडीज़ की पूरा यानी कि आने जाने की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि गायों की व्यवस्था है। गाय पूरा शमशान घाट का हमारा सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऊपर जो विकास हो रहा है वो एक बात अलग है, गांव के विकास को देखना चाहिए। हमारा निजी नेता हमारा सुनता नहीं है। तो यहाँ पर 18 तारीख को, 18 अप्रैल को इस मथुरा की कंस्टिट्यूएंसी में पोलिंग है। अब देखना दिलचस्प होगा। आपने सबकी बातें सुनी। कहीं कोई कह रहा है कि हेमा मालिनी जी उनके घर पे जाती नहीं है। जो गठबंधन है वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनको बीजेपी ने नहीं देखा है। तो इस समय हम और आप इसका फैसला नहीं कर सकते। 18 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग है और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरफ ये लहर जाती है। अभी तक के लिए मथुरा से इतना ही। नमस्कार।